قسمت خراب ہے تو سنواریں گے یا علی، قسمت خراب ہے تو سنواریں گے یا علی، حالات بد سے ہمیں ہی نکالیں گے یا علی۔ ناکامیوں کا خوف کوئی خوف ہی نہیں، ناکامیوں کا خوف کوئی خوف ہی نہیں، جب کچھ نہ بن پڑا تو پکاریں گے یا علی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح ہدایت، اور آج کا میں نے آپ کو ٹاپک بھی بتا دیا تھا، ہم تکبر پہ بات کر رہے ہیں۔ جب آپ کی فون لائنز کھولی جائیں گی تو آپ اس پر بات کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے اگلے سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے جس کا نام ہے اقوال معصومین۔ رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات کرتے رہنا چاہیے، اس سے غربت کے عالم میں غربت سے نجات ملتا ہے۔ سب سے افضل صدقہ جو ہوتا ہے وہ ایسے رشتہ داروں کو دینا ہوتا ہے جو اس سے قلبی طور پر دشمنی رکھتا ہو۔ بیمار کی عیادت کرنے اگر جا رہے ہیں تو سب سے بڑا صدقہ رسول فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ بیمار کی عیادت کرنے جانا۔ اگلے ارشاد میں فرماتے ہیں کہ مقروض کو ادائیگی قرض کے لیے مہلت دینا، اس کا قرض معاف کر دینا، کیونکہ ایسے شخص کو اللہ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس کا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اگلے ارشاد میں ہے اپنے برادر مومن کی حاجت کو پورا کرنا اور اس کی پریشانی کو دور کرنا، کیونکہ ایسا کرنے والے شخص کی حاجت اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے اور دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ آگے معصومین ارشاد فرما رہے ہیں کہ فضول گفتگو سے اجتناب کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے، اور ایسے شخص کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری کی نوید سنا رہے ہیں جو فضول باتوں سے اجتناب کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اوقات نماز کی پابندی کرنا، اوقات نماز کی پابندی کرنا اور دنیاوی چیزوں پر نماز کو فوقیت دینا، اپنے اوپر کی گئی زیادتیوں کو معاف کر دینا، اور ایسا کرنے والا میری امت کا بہترین شخص ہوگا۔ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنا، اگر زمانہ دولت مندی میں موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں گے تو اس کا نتیجہ ثقافت پر آمادہ کر دیتی ہے۔ اچھا، اپنے بچوں کو آداب اسلامی کی تعلیم دینا اور خوف خدا سے رونا، یہ سب معصومین کے چھوٹے چھوٹے اقوال ہیں جن سے مسلسل نیکیوں میں اضافہ بھی ہوگا اور آپ کی زندگی بھی سنور سکتی ہے۔ جی ناظرین، یہ چھوٹے چھوٹے معصومین کے قول تھے، تو اسی کے ساتھ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے حالات حاضرہ، اور چلیں سسٹر سحر کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کیا تازہ ترین خبریں لے کے ہمارے لیے حاضر ہوئی ہیں۔ جی سسٹر۔ جی صدف، روزانہ کی طرح آج بھی میرے پاس کچھ خاص خبریں ہیں، اور آپ جب صبح آتی ہیں تو سب سے پہلے یہ کہتی ہیں کہ اب جو نیوز ہیں وہ بڑی مجھے اس میں دلچسپی ہے، اور تو آپ کے ساتھ ساتھ باقی تمام ناظرین بھی میرا خیال ہے کہ ہر گھنٹے ہر لمحہ جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے ویسے تو ہدایت ٹی وی میں کہ آپ کو باخبر رکھیں، اور جو بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں حالات و واقعات میں ان سے آپ کو آگاہ رکھا جائے۔ آج کی کچھ خاص خبریں کچھ اس طرح سے ہیں۔ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج پشاور پر حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کا چہلم منگل کو سرکاری سطح پر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقد ہوا۔ صوبے میں آج عام تعطیل تھی۔ رسم چہلم میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بھی شریک ہوئے، لیکن ذرائع ابلاغ کو اس کی کوریج نہیں دی گئی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقد رسم چہلم میں ہونے والی قرآن خوانی میں بڑی تعداد میں والدین نے شرکت کی۔ اس موقع پر والدین نے عمران خان، وزیر اعلیٰ اور گورنر خیبر پختونخوا کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ والدین کا موقف تھا کہ صوبے میں سرکاری اسکولوں کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے میں ہلاک ہونے والے بچوں کے نام سے منسوب کیا جائے۔
बच्चों की बरसी पर सरकारी तातील होनी चाहिए और सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद बेहतर बनाया जाए। हक्काम ने वालिदैन को यकीन दहानी कराई कि जो कुछ मुमकिन होगा किया जाएगा। इमरान खान का कहना था कि वो वजीर आला से कहेंगे कि इनकी तमाम मुश्किलात का अजाला किया जाए। हैरान कुन बात यह थी कि इस चिहलम की कवरेज के लिए सहाफियों को वजीर आला हाउस में जाने की इजाजत नहीं दी गई। पाकिस्तान में पेट्रोल के हालिया बहरान की तहकीकात के लिए कायम की गई कमेटी ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में तेल और गैस के निगरान इदारे ओगरा को इस बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया है। वज़ीर आज़म हाउस से मंगल को जारी होने वाले बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मंगल को भी मुल्क में पेट्रोलियम की किल्लत के बारे में एक जायजा इजलास में शिरकत की। बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने मुल्क में पेट्रोलियम की खरीदो फरोख्त और तस्सील के ढांचे में तब्दीलियों का हुक्म दिया ताकि मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो सके। इसी इजलास में बहरान की तहकीकात के लिए बनाई गई 2 रुकनी कमेटी ने इजलास में अपनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक पेट्रोल की किल्लत की वजह बतौर निगरान ओगरा की अपनी जिम्मेदारियां अदा न करना है। वज़ीर आज़म ने इजलास में पाकिस्तान स्टेट ऑयल के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर सहेल भट्ट को भी मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। बयान के मुताबिक वो भी इस बहरान के जिम्मेदार पाए गए हैं। वज़ीर आला इससे पहले पीएसओ के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अमजद जंजुआ समेत 4 आला अफसरान को भी मुअत्तल कर चुके हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल पर 16 दिसंबर के हमले के नतीजे में 150 अफराद के कत्ले आम के बाद खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर के तालीमी इदारे तकरीबन 1 माह तक बंद रहे। तो यही की जा रही थी कि स्कूल खुलने के बाद हालात रफ्ता रफ्ता मामूल पर आ जाएंगे, लेकिन मामला इसके बरक्स नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने स्कूल हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए सूबे भर में कायम तमाम सरकारी और निजी तालीमी अदारों को एक ज़ाब्ता-ए-कार जारी किया है, जिसके तहत तमाम स्कूलों में मुहाफ़िज़ों की हमावक्त तैनाती, दाखिली खारजी रास्तों पर सीसीटीवी कैमरों की तनसीब और स्कूलों की दीवारों को ऊंची करके वहां खारदार तारें लगाने को लाजिम करार दिया गया है। इसके साथ साथ सूबाई हुकूमत ने असातिज़ा कराम और दीगर स्टाफ को स्कूलों के अंदर लाइसेंस शुदा असला रखने की इजाज़त भी दे दी है। सूबाई हुकूमत ने ये इक़दामात इस मकसद के तहत किए कि ताकि स्कूलों की सिक्योरिटी बेहतर बनाई जाए, लेकिन अब तक इन इंतजामात से फायदे की बजाय खौफ व हरास फैलने की इतलात मिल रही हैं। साबिक चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के खिलाफ 20 अरब रुपए के हर्जाने का दावा कर दिया गया है। F8 कचहरी में सेशन जज अजीज अहमद ने साबिक चीफ जस्टिस के दावा की समाअत की। दौरान समाअत इफ्तिखार चौधरी की जानिब से शेख एहसनुद्दीन पर मुश्तकिल वकला के पैनल ने इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में दावा दायर किया। शेख एहसन एडवोकेट ने दावा में मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान की जानिब से आम इंतखाबात 2013 में धांधली के हवाले से साबिक चीफ जस्टिस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए गए, जिसकी वजह से दुनिया भर में बदनामी हुई। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और उनके खानदान को ज़हनी खौफ का सामना करना पड़ा, जबकि इमरान खान अपने इल्ज़ामात को साबित नहीं कर सके हैं। दावा में कहा गया है कि वो माफ़ी मांगें या 20 अरब रुपए हर्जाना अदा करें। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए 29 जनवरी को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से जवाब तलब कर लिया है। वाज़ेह रहे कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी गुज़िश्ता साल दिसंबर में अपने ओहदे से सुबकदोश हुए थे। इमरान खान की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस पर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने आम इंतखाबात में होने वाली धांधली के जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। IMF ने शरह सूद में कमी की हिमायत कर दी। न्यूयॉर्क आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान में शरह सूद को कम करने की हिमायत कर दी है। IMF ये भी कहता है कि अमन और अमान की खराब सूरत हाल तशवीश का बायस है। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान IMF हुकाम का कहना था कि पाकिस्तान में अमन और अमान की खराब सूरत हाल तशवीशनाक है। आलमी मंडी में तेल की कीमत में होने वाली कमी का फायदा उठाया जा सकता है। IMF के मुताबिक सस्ते खाम तेल से होने वाला फायदा
GDP 2% के बराबर हो सकता है और इसके अलावा बेहतर मौशी सूरत-ए-हाल हुकूमती कर्जों में कमी और रुपए की कदर में इस्तेहकाम का बायस बन सकती है। अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी क्रिकेट टीम बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गई है। कप्तान मिसबाहुल हक कहते हैं कि हर मैच अहम है। एयरपोर्ट रवानगी से कबल नेशनल क्रिकेट एकेडमी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कौमी टीम के कप्तान मिसबाहुल हक ने कहा कि जितनी तैयारी करनी थी कर ली है, नतीजे से बेफिक्र होकर अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, भारत को शिकस्त देकर रीत बदलेंगे। इस मौका पर मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने कहा कि कौमी टीम मुकम्मल तैयारी के साथ मेगा इवेंट में शिरकत कर रही है। हमें कौम की दुआओं की जरूरत है। स्क्वाड में मौजूद जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मौजूद है। क्रिकेट का आलमी मेला 14 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सजेगा। पाकिस्तानी शाहीन टूर्नामेंट का आगाज 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलकर करेंगे। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जुनैद खान अनफिट होने के सबब कौमी क्रिकेट टीम के दौरे न्यूजीलैंड से बाहर गए हैं। ताहम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिलहाल इन्हें आलमी कप के स्क्वाड में बरकरार रखा है। हुक्काम के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में इनकी फिटनेस देखने के बाद ही फैसला किया जाएगा कि वो वर्ल्ड कप खेल सकते हैं या नहीं। जुनैद खान के अनफिट होने के सबब बिलावल भट्टी को न्यूजीलैंड के दौरे पर भेजने का फैसला किया गया है। जुनैद खान को टीम से ड्रॉप करने का फैसला पाकिस्तानी टीम की न्यूजीलैंड रवानगी से चंद घंटे पहले किया गया। ये तो जो खेल की मैदान से आपके लिए खास खबरें थी। इसके अलावा मौसम की सूरत हाल तो आप खुद भी महसूस करते रहते हैं कि बहुत सख्त शदीद सर्दी पड़ रही है और टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम -1। अपना ख्याल रखिएगा जी। शुक्रिया सिस्टर। ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो सिस्टर सहर की ज़बानी आप लोगों ने सुनी है। तो इसी के साथ हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है आज की टिप्स। तो काफ़ी सारी आज की नई टिप्स लेकर आई थी, लेकिन आप लोगों के बेहद इसरार पर आपने कहा है कि जो पिछली आपने हमें तरकीबें बताई थी ब्यूटी के हवाले से तो वो आप दोहरा दें। तो अब इस दफ़ा मैं फिर दोहराए देती हूँ, अब आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। चेहरे का मैल साफ़ करने की पहला बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा मैं आपको बता रही हूँ कि जौ के आटे के इस्तेमाल से चेहरा बहुत ही साफ़ सुथरा और दाग धब्बों से दूर हो जाता है। आपने लेना है जौ का आटा पिसा हुआ, अगर पिसा हुआ नहीं हो तो उसको ग्राइंडर में पीस लीजिए। थोड़े से आटे में, जौ के आटे में आप जैतून का तेल मिलाइए और उसमें आधा चमचा शहद उसमें शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें और उस आमेज़े को जो है आप अच्छी तरह से अपने चेहरे पर खूब मसाज कीजिए। हर जगह बआसानी ये आटा दस्तयाब हो जाता है। अगर नहीं मिल रहा तो आप जौ को लेके खुद ग्राइंड कर लें। वैसे खुद ग्राइंड करने में इतना नहीं होगा, कोशिश करें कि बाज़ार से पिसाया आपको जो है ये आटा मिल जाए। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें चंद क़तरे लेमन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं अगर आप चाहें। इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें लेमन के क़तरे भी डाला जाए। दूसरी तरकीब क्या आपने कहा था कि दूसरा तरीक़ा जो मेकअप से चेहरे पर झाइयाँ पड़ जाती हैं। रोज़ जो ख़वातीन मेकअप करने वाली होती हैं आखिरकार एक ना एक दिन उनके चेहरे पर झाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। अव्वल तो पहले ही अपनी स्किन का ख्याल रखिए, क्योंकि एक दफ़ा अगर झाइयाँ पड़ जाएँ तो उसका जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये मेकअप से जो झाइयाँ पड़ती हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि मिट्टी की एक प्याली लीजिए, इसमें 1 चमचा बलाई डालिए और तकरीबन 3 पिसे हुए बादाम डालिए। उसको बिल्कुल बारीक सा पेस्ट सा बना लीजिएगा बादाम का भी, और वो चेहरे पर रात को लगाना है रोज़। और सुबह उठ के आपने अच्छी तरह से अच्छे साबुन से जो है अपना चेहरा आपने साफ़ कर लेना है। इसी के लिए एक झाइयों के लिए एक और है जो मेकअप से झाइयाँ पड़ती हैं। इसमें भी गेहूं का आटा है और हल्दी, यानी कि जितना आप गेहूं का आटा लें, मिसाल के तौर पर 1 चमचा आप गेहूं का आटा ले रहे हैं तो 1 चमचा ही आपको हल्दी उसमें डालना पड़ेगी और फिर गाय के कच्चे दूध में मिलाकर वो चेहरे पर उसका मसाज करें।
उससे भी आपके चेहरे की जो झाइयाँ होंगी वो दूर हो जाएंगी। फिर कहूँगी अपने चेहरे की जिल्द का जो है बहुत आप एहतियात कीजिए। एक दफ़ा जब ख़राब हो जाती है तो उसका बहुत मुश्किल हो जाता है दोबारा उसी हालत पर आना। ये छोटी छोटी आज की टिप्स थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी और आप अपना भी ख्याल करेंगे और अपने चेहरे का भी ख्याल करेंगे। वर्जिश को आप अपना मामूल बनाइए, स्विमिंग को अपना हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर कीजिए, जिससे आपको अपनी सेहत के लिए भी आपके लिए मुफीद है और आपका चेहरा भी हमेशा की तरह शाद व आबाद रहेगा। जी नाज़रीन, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है आज क्या पकाएं। तो आज देखते हैं कि सहर हमारी क्या मुश्किल आसान कर रही है, जो खाने की एक रोज़ाना की एक मुश्किल होती है कि आज क्या पकाएं। तो चलते हैं सहर के पास। जी सहर। आज तो सदफ मैंने सोचा कि आज शाम की जो चाय है उसके लिए मैं कुछ बताऊं। आज खाना जो है आज ख़वातीन और बहनें जो हैं वो सब अपनी मर्जी का बनाएं। बहुत खूब जी। तो क्योंकि बच्चे शाम को घर आते हैं तो उनको भी कुछ स्नैक चाहिए होता है, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बच्चे क्रिस्प वगैरह खाने लग जाते हैं जो कि बहुत अनहेल्थी है। तो चिकन नगेट्स आपको पता है कि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और वो कोई मौका नहीं जाने देते। चिकन नगेट्स जो है वो प्लेट फौरन खाली हो जाती है उससे। तो वैसे तो फ्रोज़न भी मिलते हैं लेकिन उनमें वो टेस्ट, वो मज़ा नहीं होता, वो जायका नहीं होता जो आप घर में बनाते हैं। और उससे और आप जाहिर है कि वो जो घर में बनाएंगे उसमें आप हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे और वो ज़्यादा जो होंगे बच्चों के लिए फ़ायदा मंद होंगे बजाय इसके कि आप फ्रोज़न चिकन नगेट्स जो हैं वो इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन मैं आपको बताए चलती हूँ। चिकन नगेट्स बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन ब्रेस्ट पीस। चिकन ब्रेस्ट के हमें पीसेस चाहिए जो चौकोर टुकड़ों में कटे हों, आधा किलो। मस्टर्ड पाउडर चाहिए हमें 1 खाने का चम्मच। सफ़ेद पिसी मिर्च चाहिए 1 खाने का चम्मच। चीनी चाहिए हमें आधा चाय का चम्मच। सोया सॉस 2 खाने के चम्मच। सिरका 1 खाने का चम्मच। अंडे हमें 3 अदद चाहिए होंगे जिनको आप अच्छी तरह से फेंट लें। ऑयल तलने के लिए, नमक आपके जायके के मुताबिक और मैदा चाहिए आपको हस्बे ज़रूरत। बहुत ही आसान, बहुत ही सादा सी ये डिश है और आप इसको जो है वो आराम से बना सकते हैं। कोई मुश्किल पेश नहीं आती इसको बनाने में और आप जब बच्चों के लिए बनाएंगे तो बच्चे इसको बहुत खुश होकर खाएंगे। एक बड़े प्याले में चिकन के टुकड़ों में सोया सॉस, सिरका और खुश्क मसाले लगाकर आधे घंटे के लिए रख दें। एक बड़े प्याले में चिकन के टुकड़ों में सोया सॉस, सिरका, खुश्क मसाले लगाकर आधे घंटे के लिए रख दें। उसको मैरिनेट करके रख दें और उस दौरान आप कढ़ाई में ऑयल गरम करके चिकन के टुकड़ों को जो आपने मैरिनेट किए हैं पहले उनको मैदे में डिप कीजिए, उसको अच्छी तरह से कवर कीजिए मैदे के साथ और फिर अंडे और ब्रेड क्रम्स में लपेट लें। आपने पहले जो आपने मैरिनेट किए हुए जो आपके पास चौकोर टुकड़े हैं चिकन के उनको आप सबसे पहले मैदे में लपेटेंगे और उसको अच्छी तरह से मैदे से कवर कर लेंगे। उसके बाद आप उन्हीं मैदे वाले टुकड़ों को अंडे में डालेंगे और ब्रेड क्रम्स जो है उसके साथ लगाकर उनको फ्राई कर लेंगे। उनको कवर करके अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स में उनको 15 मिनट के लिए जो है रख दें और फिर उसके बाद उसको लाइट गोल्डन जब हो जाएं तो उनको उतार लें, किसी टिश्यू पेपर पर निकाल लें और उसके बाद आप चिकन नगेट्स किसी भी सॉस के साथ, किसी भी केचप के साथ खाएं। आपको भी पसंद आएंगे, आपके बच्चों को भी पसंद आएंगे और ये हल्का फुल्का सा जो है आपके चाय के साथ आप मेहमानों के सामने भी पेश कर सकते हैं और घर वालों के लिए भी ये पेश कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की जो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है वो पसंद आई है और आप इसको ट्राई करेंगी और जब आप इसको ट्राई करेंगी तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके चिकन नगेट्स कैसे बने थे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़बरदस्त से और आसान से आप हमेशा लेकर आती हैं। जी बस ज़्यादा लंबी जो हैं चीज़ें वो मुश्किल है थोड़ा बनाना, आजकल के दौर में बहुत सारे काम और भी करने के लिए होते हैं। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि जो जल्दी बन जाए वही बेहतर है। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह हिदायत और आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है तकब्बुर। तो आप इस पर बात कर सकते हैं, इमाम के कौल भी हमको सुना सकते हैं और इसके जो बुरे नताइज होते हैं उससे भी हमें आगाह कर सकते हैं। तो सिस्टर जब तक कॉल नहीं आती तो मैं चाह रही हूँ कि एक नात सुनाई जाए। जी बिल्कुल, तो अगर आपकी इजाज़त हो। अरे नहीं, कैसी बातें करती हैं इजाज़त की इजाज़त है। हमारे नाज़रीन को जो पसंद हो, जिस तरह से पसंद हो, हम तो उसी तरह करना पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन हम आपकी फ़ोन कॉल्स का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक नात पेश करने जा रही हूँ।
इशारा हो मोहम्मद का तो बेजानों में जान आए, इशारा हो मोहम्मद का तो बेजानों में जान आए, उठा लें संगरेज़े भी तो आवाज़े अज़ां आए, अमीने असर आए हादिए कौनो मकां आए, अमीने असर आए हादिए कौनो मकां आए, पुकारी बढ़ के खुद मंजिल वो मीरे कारवां आए, मकाने ला मका की अज़मतों के राज़दां आए, मकाने ला मका की अज़मतों के राज़दां आए, बुतों अब और घर ढूंढो हरमे पासबां आए। एक कॉल है नाज़रीन, एक कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी आप हिदायत टीवी पे बात कर रही हैं। आप कौन साहिबा बात कर रही हैं? ये सदफ बोल रही हैं? जी मैं सदफ बात कर रही हूँ। हाँ अच्छा जी बेटा, बहुत तो आप लोगों का प्रोग्राम देख के बेटे बहुत खुशी हो रही है। वेल डन, दोनों बहुत अच्छी जा रही हैं। इसी तरह कीप इट अप मैं ये कहूंगी। और मैं तकब्बुर पे बात नहीं करना चाह रही, मैं प्रोग्राम क्योंकि मैं इसको बहुत खुश हूँ, बहुत मैं परेशान थी हिदायत टीवी के लिए। तो आप पहले अपना नाम बताना पसंद करेंगी? मैं मिसेज अली हूँ, लंदन से बात कर रही हूँ। जी आपको खुश आमदेद कहते हैं। जी मिसेज अली क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू। अच्छा एक चीज मैं जो कहना चाह रही थी कि हमारे हिदायत टीवी को जो है स्टेबिलिटी की जरूरत है, तो प्लीज प्लीज आप दोनों भाग मत जाइएगा। और दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि जो भी इज्जत मिलती है वो जो भी आप लोग काम करते हैं वो चूंकि हम कहते हैं कि ये इमाम ज़माना का चैनल है, तो वाकई जिन जिन लोगों ने भी इस पे काम किया उनको बड़ी इज्जत मिली है। और इज्जत जो है वो आप लोगों के भी नसीब में है। थोड़ी सी मैं राय देना चाहती हूँ कि जैसे हालात हाजरा का प्रोग्राम है ना, तो पॉलिटिक्स पे मालूम है आपको कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, एनालिस्ट हैं, जैसे कि निसार साहब हैं जो इम्तियाज नकवी के साथ आते हैं, और इश्तियाक साहब एक हुआ करते थे। तो इन लोगों को भी आप बुलाएं तो कि एक कोई भी टॉपिक लेकर उस पर जो है वो थोड़ा सा वो तबसरा करें। इसी तरह से जैसे गेम्स हैं या स्पोर्ट्स है, उस पर भी किसी को आप बुलाकर उनसे मतलब थोड़ा सा डिस्कशन करवा लें, तो फिर ये ज्यादा ये प्रोग्राम जो है वो फेमिनिन नहीं लगेगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे कि औरतों का प्रोग्राम हम देख रहे हैं, लेकिन आप लोग बहुत बहुत मेहनत कर रही हैं। इस काम को जारी रखिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, मौला आपके साथ हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मिसेज अली, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। लेकिन हम और नाज़रीन से भी कहना चाहेंगे कि आप हमें नई नई आरा से आरास्ता कर सकते हैं। एक और कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा मैं मम्मी लंदन से बोल रहा हूँ। खुश आमदेद कहते हैं भाई आपको। जनाब आपको और आपके मेहमान सैर को भी अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। और आप लोगों के चिकन नगेट की भी मैंने रेसिपी सुनी है। बात यह है कि अल्लाह ताला के नबी अहले बैत से इश्क करो। इश्क करने से ही हमारी जिंदगी में खुशियां आ सकती हैं। जो आदमी औरत हो या मर्द हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो, जब तक अल्लाह ताला के नबी के साथ इश्क ना किया जाए तब तक जिंदगी में रोशनी नहीं आ सकती। क्योंकि अल्लाह ताला के नबी के जरिए से ही और कलमे के जरिए से अहले बैत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जरिए से ही हमें अपने आप को रोशन करके अल्लाह ताला के रसूल अहले बैत का नाम बुलंद कर सकते हैं। तो आप लोगों की बातें सुनता हूँ तो शुक्र खुदा का करता हूँ कि अल्लाह ताला का नाम लेना आशिक जो है शिया लोग सुन्नी भी है, लेकिन शिया में बहुत नजर आता है कि इनकी औरतों में और इनके मर्दों में अदब है। अदब जिसके अंदर आ गया वो कामयाब हो गया, और जो बेअदब बन गया वो फेल हो गया। इसी के साथ जाने चाहता हूँ और आप शराबों का शुक्रिया और जनाब को फिर अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी आपकी कॉल की। जी रोजाना माशाल्लाह इतने जी, हौसला अफजाई की कॉल्स हमारे लिए आ रही हैं। बिल्कुल। जी तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे अपने नाज़रीन? पहले सबसे तो मैं ये सोच रही थी कि
جو آپ کی تجویز ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ آگے آئیں اور آپ ہمیں مشورہ دیں، کیونکہ آپ کا پروگرام ہے، آپ ہی کی مرضی کے مطابق اس کو چلنا چاہیے. بالکل. جس طرح سے آپ پسند کریں اس کو آپ ہم اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور آپ کی تجویز کو ہم یقیناً جتنا ہمارے لیے ممکن ہوگا ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں. جی بالکل، اور ہم انتظار کریں گے ناظرین آج کے ٹاپک کے حوالے سے بھی کہ آپ بات کرنا چاہیں. آج ہم نے ٹاپک رکھا ہے تکبر پر، لیکن آپ منقبت کے نعت کے جو ہے آپ پھول بھی بکھرا سکتے ہیں. آپ کا اپنا چینل ہے، آپ اچھی اچھی نعتیں سنائیے، منقبت سنائیے، اور ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے کالرز آتے ہیں، اچھی اچھی اور بڑی دیکھیں کہ پازیٹیو ان کی اپروچ ہے سب کی، کتنا حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور کتنا ان کو ہدایت ٹی وی کے ساتھ محبت کا جو عالم ہے وہ واقعی دیکھنے کے قابل ہے. جی بالکل. تو میں تکبر کے حوالے سے کچھ باتیں میں بھی شیئر کرنا چاہوں گی، لیکن میں اور میری سسٹر آپ لوگوں کا بھی انتظار کریں گے. جی ناظرین، سب سے پہلے سوال کے پیدا ہوتا ہے تکبر ہے کیا چیز؟ تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے کپڑے زیب تن کرنا، اپنا حلیہ اچھا بنانا تکبر نہیں ہے. اچھے کپڑے زیب تن کرنا، اپنا اچھا حلیہ بنانا تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق بات کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. بہت ہی معنی خیز اور بہت ہی میرا پسندیدہ جو ہے یہ قول ہے کہ حق بات کو اگر وہ ٹھکرا دے، لیکن جیسے کوئی حق بات ہو رہی ہے ہم اس کو نہیں مانیں، اپنے آپ کو اڑے رہیں اور اپنے آپ کو اعلیٰ اور افضل سمجھیں. آپ کسی سے معافی مانگ کے چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اس شخص کی نظر میں بھی بڑے ہو جائیں گے، اور اللہ کے لیے جس کے قربتن اللہ کر کے آپ جس شخص سے معافی مانگ رہے ہیں، جس شخص کو اونچا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو حقیر دکھا دیجئے لیکن دوسروں کو آپ حقیر نہ سمجھیے. ایک کال ہے، کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. لگتا ہے کال ڈراپ ہوگی. نیکسٹ کال لیں. آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں، فی الحال نہیں ہے. تو یہ میں مولا کا کال آپ لوگوں سے شیئر کر رہی تھی کہ یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھے کپڑے اگر ہم پہنیں گے، ہم اپنے آپ کو اچھا ظاہر کر رہے ہیں، تو یہ کہیں تکبر میں نہیں. تکبر مولا فرما رہے ہیں کہ تکبر وہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے. آگے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے خدا کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی پہاڑوں کی لمبائی تک تو پہنچ سکتا ہے. سحر انسان ہے کیا چیز؟ انسان خود اتنا حقیر ہے، لیکن وہ کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ دیکھیں خدا کی مرضی کے بغیر وہ اپنی ہاتھ کو نہیں ہلا سکتا انسان، اور اس کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے اگر خدا تعالیٰ نہیں چاہتا. اس کے باوجود ہم انسان جو ہیں وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں اور زمین پر اس طرح اکڑ کر چلتے ہیں کہ ہم باقی دنیا سے، باقی لوگوں سے بہت بہتر ہیں. بالکل. اور جب ابلیس نے تکبر کیا اور اس کا آپ نے دیکھیں کہ اس کا کیا مقام ہوا، قرآن مجید میں فرمایا گیا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، جو کہ کافروں میں سے ہو گیا. جب کوئی بھی انسان تکبر کر رہا ہوتا ہے اس وقت تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے بہتر دنیا میں اور کوئی شخص نہیں ہے. بالکل. لیکن جب اللہ تعالیٰ کیونکہ تکبر کو پسند نہیں کرتا اور جب وہ اس کو اس کی مقام پہ پہنچا دیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر اس کے لیے وہ نہ صرف عبرت کا باعث بنتا ہے دنیا والوں کے لیے. ہم کال لے لیتے ہیں میرا خیال ہے. جی سسٹر لیجیے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی آپ ٹی وی کی والیوم پلیز بند کر دیجئے. اچھا بولیے. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ یہ ہم تو ادھر خبر سے بات کر رہے ہیں. جی آپ ہدایت ٹی وی پہ آن ایئر ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ہم بول رہے وہ فیس کے بارے میں بتا رہے تھے، ابھی وہی دیکھ رہی نہیں اس لیے. جی اچھا، آپ کو کیا معلوم کرنا ہے فیس کے مطابق؟
हाँ पेट में ऐसा झिल्लियाँ आए हुए, वो जरा छोले के प्रकार धारा, इसलिए नहीं है हो रहा, तो इसलिए बताऊंगी बल्कि ठीक है सुनी थी मैडम से। जी ठीक है, इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम के बीच में आपको ज़रूर दोबारा रिपीट कर दूंगी, आप प्रोग्राम देखते रहिए। लेकिन सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, अपना ब्लड टेस्ट करवाइए कि क्या वजूहात हैं जो आपके झाइयाँ आ रही हैं। ऑपोजिट है, ब्लड साफ है मेरा, इसलिए बल्कि ये कर रही हूँ। जी इंशाल्लाह ताला, जी हम आपकी मुश्किल इंशाल्लाह ज़रूर आसान करेंगे। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं तकब्बुर पर। तो आपके भी हम कॉल का इंतज़ार करेंगे, लेकिन इस वक्त हम जा रहे हैं मुख्तसर से ब्रेक की बात। तो आप हमारे साथ ही रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।